So now screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay. So what I discussed yesterday, I have already discussed these issues of physical properties of the mineral, that is color, streak, hardness, luster, okay, and fracture, specific gravity, diagnostic properties out of all these properties. As a diagnostic properties, some unique properties by which the mineral is separated from others, or it is identified very quickly from the other minerals. If certain things are similar, like color, if the colors are similar of the mineral, then you can identify with the another properties which are unique in nature, and that is called diagnostic property of the mineral. So I was discussing the classification, and yeah, one thing I would like to, you can say, answer from you, that suppose that there is a silicate and non-silicate groups under classification of the mineral. In the silicate groups, I discussed about the different type of the crystal arrangement under the different crystal systems and its arrangement, like sheet structures, then single tetrahedral structures, double tetrahedral structures, Sir, and then chain structures. Yeah, sir, can you please keep the meet in the calendar? सर एक्चुअली पता नहीं चलता है कि कब हमारी क्लास है और सर मैं नहीं नहीं, वहां से ज्वाइन कैलेंडर में करना है, चाहता हूँ। ऑलरेडी ऑलरेडी कैलेंडर में है। आप देखिए, कैलेंडर मैंने फिक्स किया, कैलेंडर में है, कैलेंडर से ही क्लास चल रही है। Sir, actually I have joined the meeting which was in calendar, but there was no one in that meeting. So जी, just अभी now तो I have हमने came from the कैलेंडर से ही ज्वाइन किया हुआ है मैंने तो। अब स्टूडेंट्स, आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो कैलेंडर से, आई होप दे हैव ज्वाइंड। Yes sir, Okay, sir, I calendar will से check. join Yes, करा sir, था। this meeting is on calendar पे। Yes sir. सियास में रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैंने तो कैलेंडर से ही ये मीटिंग हेल्प वो किया हुआ शेड्यूल, और कैलेंडर में फिक्स है सारे क्लासेस। Okay, sir, I will check then. Yeah. So actually, this is the one issues related to the subject. So let me discuss the classifications. I was explaining or repeating the things from the yesterday lectures, that the silicate groups, I discussed the different type of arrangement of the mineral grains under the different crystal systems and its layout. Layout means arrangements, this position of the different type of the, you can say, the element in the form of compound, and silicate and non-silicate. So, do you have any idea that if suppose that carbonate and oxide under non-silicate, what may be the effect on the luster or cleavage? If suppose that silicate structure is there and non-silicate structures, under non-silicate, if suppose I pick up the carbonate or oxide group of minerals, what may be you may be thinking regarding the luster or hardness or any physical properties, the changes due to this basic thing. Basic thing क्या है? Crystal structures से silicate and non-silicate classify कर दिया। Non-silicate में I have cited the examples like carbonate and oxide, कार्बोनेट और ऑक्साइड, और इधर आ गया सिलिकेट में आपका बहुत सारे एल्यूमिनो सिलिकेट जो मिनरल है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जैसे हमने माइक चेन स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल स्टडी दिया, डबल चेन, सिंगल चेन, चीट स्ट्रक्चर्स, सिंगल टेट्राहेड्रा, डबल टेट्राहेड्रा विद ऑल द एग्जांपल। अब आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कार्बोनेट और ऑक्साइड में कैसा लस्टर डिफरेंट हो सकता है सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स? May you have any idea, or you can think over it?
सर आई गैस जो ऑक्साइड और कार्बोनेट का वो होता है नॉन मेटेलिक लक्ष्चर वेरी होगा। गुड, वेरी गुड। और ऑक्साइड? एनीवन? अपर्णा, अवस्थी? Yes, sir. Do you have any idea, Aparna? Sir, can you please repeat the question? This is not good practice, Aparna. Just one student has replied, and it is just a moment I had. इसका मतलब आप सुन नहीं रहे थे. You are not listening the lecture. No, sir. यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है तो नेटवर्क इशू तो बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है. And you are under, again I repeat that what do you find in the difference in the luster under the carbonate and oxides with the silicate group? क्या difference आपको मिलता है luster में, मिल सकता है? अब क्वेश्चन सुनाई दिया आपको? Yes, sir. बताइए. ऑक्साइड ग्रुप का कोई मिनरल का नाम बताइए और कार्बोनेट ग्रुप का. अर्पित वाजपेयी. Yes, sir. Can you tell? सर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और ऑक्साइड ग्रुप में आता है. ये क्या एलिमेंट हम आपसे पूछ रहे हैं कि मिनरल का नाम पूछ रहे हैं? नाइट्रोजन कोई मिनरल है? नो नो सर, आपने वो एलिमेंट पूछे थे ना अभी. एलिमेंट तो अच्छा मैंने नहीं सर मिनरल. एलिमेंट ऑक्साइड नहीं हो सकता. हाँ एलिमेंट तो एलिमेंट होता है. एलिमेंट सर ऑक्साइड का मिनरल. मिनरल ऑक्साइड एंड कार्बोनेट. सर कैल्शियम, सर कैल्साइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट. वेरी गुड. और ऑक्साइड का? सर ऑक्साइड सर कैल्शियम मिनरल सर. नो आइडिया. एनीवन? नो ऑक्साइड. Hematite. Parametite, cuperite. ठीक बात है. So now can anyone tell the hematite and the luster difference between hematite and calcite? सर हेमेटाइट में सर मेटालिक लेक्चर होगा और कैल्साइट सर नॉन. Very good. So some metallic to metallic luster may go towards the oxide group of minerals, while it is non-metallic lusters, either it may be pearly or it may be greasy or it may be this you can say earthy towards the carbonate group of the minerals. So like I cite one examples of two minerals which is having the supposed magnesite, magnesium carbonate, and dolomite, calcium magnesium carbonate. So if you get the minerals like magnesite and dolomite, the dolomite has a vitreous luster while the magnesite is having earthy luster. Both belongs to carbonate groups. But here if you look towards why it has happened, here the composition of dolomite is calcium magnesium carbonate. And here the magnesite only magnesium carbonate. So the input of the calcium slightly changes the luster as well as hardness. जैसे कैल्साइट में कैल्शियम कार्बोनेट है, डोलोमाइट में कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नेसाइट में मैग्नीशियम कार्बोनेट है. तो जैसे ही कैल्शियम से मैग्नीशियम की आप तरफ चलते हैं तो द लस्टर बिकम्स टुवर्ड्स अर्दी फ्रॉम आइदर विट्रियस और पर्ली लस्टर. तो पर्ली या विट्रियस से हम अर्दी की तरफ जाते हैं जब ए मैग्नीशियम रिच होता है, जैसे मैग्नेसाइट कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नेसाइट मिनरल. इसी तरह से आपके जैसे सल्फाइड ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं. अभी हम ऑक्साइड और कार्बोनेट ग्रुप की मिनरल्स की बात कर रहे थे. सल्फाइड ग्रुप जनरली हैज क्यूबिक फॉर्म, क्योंकि उसका लैटिस का जो अरेंजमेंट होगा, आप ये देखिए कि ऑक्साइड कार्बोनेट ग्रुप और सल्फाइड ग्रुप में जो लैटिस का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा. द लैटिस अरेंजमेंट इन द सल्फाइड ग्रुप विल बी मोर पैक्ड, क्लोजली पैक्ड under the cubic system more you can say than the carbonate and oxide.
Do you agree with me or not? Anyone who is having the different idea? Anyone? Ananya? Ananya Upadhyay? Hello? Abhishek Tripathi? Abhishek Tripathi? Alok Verma? Pranav Tiwari? Hello? Aditya Barnwal? Yes, sir. Am I audible? Aditya? Yes, sir, you are audible. Very good. So, do you have any idea that what I have just explained, the difference between the form of sulfide group than oxide and carbonate? Yes, sir. Yeah, Sulfides are more closely packed in the cubic structures, yeah, and they are compact. That's why. yeah. The hardness is also higher than carbonate and oxide group of minerals in the sulfide. But if the lattice arrangement is such under the sulfide that the sheet structure like graphite is, if it is present, then only the carbon arrangement is there, but it is the arrangement is like a sheet structure, so hardness lowers down, the hardness becomes low. So in the form of this sulfide group of minerals, is having the more metallic to submetallic luster, and up to certain extent कुछ जगहों पे sulfide group of minerals में greasy and metallic to submetallic मिलता है, while oxide group of minerals में जैसे अभी मैंने कहा submetallic to metallic, but carbonate group mineral rarely we have metallic luster, rarely. So my point is under the classification of the mineral is one issues and related to the physical properties of those minerals belonging to the different class like sulfide, carbonate, oxide, sulfide group, which comes together under the non-silicate group, and they have the different type of the physical properties also. So our duty or our business, or you can say our attention, should not be towards only to understand they are just to remember the classification that S minerals belong to silicate and non-silicate, and silicate में A structures है, non-silicate में A structures, only not that. You have to practically correlate certain physical properties which can be distinguished on the basis of the classified minerals, means on the basis of this classification. Are you getting my point? Yes, sir. Very good. So if there is any doubt, is there any doubt to you, anybody, up to this stage? If you are keeping mum, then I understand. Like carbonate groups here, as a dolomite, I have cited the example calcite. Jैसे magnesite is also, magnesite is a mineral under carbonate group. So the hardness of magnesite is less than dolomite. So the dolomite, it is a calcium magnesium carbonate, and magnesite is having only magnesium carbonate, and the hardness of calcite is 3, as you know, that under Mohs scale. And if you look towards the hardness among these 3 minerals, magnesite, डोलोमाइट एंड कैल्साइट की जब हार्डनेस को आप देखते हैं तो भी इसमें वेरिएशन आता है कि मैग्नेसाइट का डोलोमाइट से कम, डोलोमाइट का डोलोमाइट कैल्साइट का डोलोमाइट से भी कम है, और मैग्नेसाइट इज हार्डर देन कैल्साइट. सो मींस अगर जहां देयरफॉर आप देखिए कि डोलोमाइट में हम क्लीवेज नहीं जनरली पाते हैं, लेकिन कैल्साइट में पाते हैं, और मैग्नेसाइट में क्लीवेज एब्सेंट होता है, जबकि एक ही ग्रुप को, ए कार्बोनेट ग्रुप्स को ए मिनरल्स बिलोंग कर रहे हैं.
क्यों ऐसा हुआ? एनीवन? सर मैग्नीशियम के एडिशन की वजह से। मैग्नीशियम के होने से। सर मैग्नीशियम है उसमें, इस वजह से हो रहा हो शायद। कभी भी जब लैटिस परफेक्ट, एक जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम मैग्नीशियम से रिप्लेस हुआ तो उसमें लैटिस उसका पूरा फिट नहीं हुआ। कीटेक एक बजे class theory class. So I was discussing that the cleavage, presence of the cleavage due to the different crystal system, and I was citing the example of the dolomite, calcite, and magnesite, which all these minerals belong to carbonate groups. So due to the presence of this magnesium or replacement of the calcium with magnesium in the lattice, it has effects on the luster as well as the hardness and cleavage. So again, this is the point to be noted by you, that the crystal system and arrangement of the lattice of the different mineral grains in the mineral affects not only the hardness, it can affect the luster as well as the cleavage, existence of the cleavage. So the sulfides like cinnabar is nothing Excuse but, me, sir. yeah, please. Sir, it is because I think when magnesium is replaced by calcium, the ions of the lattice have similar size. So we have less cleavage. Is it the right explanation or not? No. My point is, if it is replaced, suppose that, and magnesium is coming into that, then certain disturbances occur. Suppose that calcium is there, and one calcium is replaced by magnesium. Your point is correct, it is similar, but it is not same. So during this natural process for the substitution and arrangement of the lattice and fixing of this element in the lattice, it disturbs little bit to that existing structures. Are you agreeing with me or not? Yes, sir. It will. And due to this process disturbance, we get the imperfect cleavage or incipient cleavage हम पा सकते हैं, लेकिन perfect cleavage नहीं मिलेगा, क्योंकि एक प्लेनर स्ट्रक्चर जिसके अलावा वो लैटिस डिस्टर्ब हो रहा है, और अगर लैटिस डिस्टर्ब हो रहा है तो उसमें या तो इंसिपिएंट हम क्लीवेज पा सकते हैं जिसकी ग्रोथ या हल्की फुल्की आपको लगे कि एक क्लीवेज जैसा है, अदरवाइज परफेक्ट क्लीवेज नहीं मिलता। उसी तरह से हार्डनेस में है, यदि ये लैटिस डिस्टर्ब होता है तो हार्डनेस में भी हल्का सा बदलाव आ जाता है। आर यू परसीविंग इट? आपको? यस सर, यस सर, यस सर। माय पॉइंट इज लैटिस में डिस्टरबेंस तो आता है, पर सर किस टाइप का डिस्टरबेंस आता है, मतलब किसकी वजह से आता है? एक तो साइज चेंज हुआ हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम का, सर उसकी वजह से नहीं, मतलब जैसे हमारा एक तो लस्टर भी सर डिस्टर्ब हुआ और हमारा हार्डनेस भी डिस्टर्ब हुआ, तो सर दोनों के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन होगा ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के? केवल कैल्शियम मैग्नीशियम से नहीं, जितने भी जैसे एक पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जब कभी भी फॉरेन एलिमेंट कोई उसमें सब्स्टिट्यूट करेगा जा करके, तो दैट पैक्ड स्ट्रक्चर्स, लैटिस स्ट्रक्चर विल गेट डिस्टर्ब और नॉट? यस सर। उसके कारण से कभी कभी इम्प्यूरिटीज भी जैसे चली जाती हैं तो लस्टर प्रभावित होता है। इम्प्यूरिटीज मीन्स जैसे आपका नेटिव गोल्ड है या नेटिव कॉपर है, उसका जो लस्टर होगा क्या क्यूपराइट का होगा? क्यूपराइट इज ए मिनरल, चाल्कोपाइराइट इज ए मिनरल, CuFeS2, चाल्कोपाइराइट कॉपर का मिनरल है, तो क्या नेटिव कॉपर का जो लस्टर होगा वो चाल्कोपाइराइट जैसा होगा? नेटिव कॉपर का तो बहुत एडमेंटाइन या मेटेलिक लस्टर हो सकता है, लेकिन चाल्कोपाइराइट का हो सकता है मेटेलिक टू सब मेटेलिक में चला जाए, जबकि दोनों कॉपर के मिनरल हैं, क्योंकि वहां नेटिव कॉपर है, ओनली कॉपर इज देयर, प्योर कॉपर जिसको कहते हैं।
तो इसी तरह से लस्टर को प्रभावित करने वाले इम्प्यूरिटीज भी है। इम्प्यूरिटीज अगर लैटिस में पहुंचती है किसी भी एलिमेंट के फॉर्म में या ऑक्साइड के फॉर्म में, तो वो भी लस्टर को प्रभावित करती है, लस्टर खराब होता है या लस्टर डिस्टर्ब होता है। आप समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी। एनीथिंग एल्स? कोई कंफ्यूजन? हेलो, any doubt? नो सर। नो सर। अरे नो मत कहो, यस बोलो, कुछ डाउट बताओ तो अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। But it should be reasonable doubt. And then let me move ahead. Just suppose that I think the screen is visible. Sulfide. Yes sir, visible. So pyrite is a mineral. I cited many times the name of this pyrite. It is also called fool's gold. The appearance. And cinnabar, that is mercury sulfide. So you find there is a presence of the cleavage in the galena while the cleavage is absent in the cinnabar. Cinnabar you will find in the lab also. Galena you will find that in the lab also. When you are coming in the physical mode in the lab, you will have this opportunity to see the pyrite as well as cinnabar, both. तो cinnabar में cleavage नहीं है, incipient fractures हैं, क्लीवेज परफेक्ट नहीं है, वाइल पायराइट में है, और दोनों सल्फाइड ग्रुप के मिनरल्स में हैं। गैलेना में भी क्लीवेज होता है। ऐसा क्या हो सकता है कि क्लीवेज, जबकि सल्फाइड ग्रुप के ही मिनरल हैं लेकिन क्लीवेज नहीं है cinnabar में? मॉलिब्डेनाइट में एक सेट क्लीवेज होता है, molybdenite, molybdenum sulfide. Molybdenite is a mineral, और molybdenite मिनरल कॉपर मिनरल क्यूप्राइट या चाल्कोपाइराइट के साथ काफी एसोसिएटेड होता है। और आपके कोई एनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू छत्तीसगढ़, मलंज खंड का नाम सुना होगा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। एनीबडी फ्रॉम छत्तीसगढ़? एनीवन? नो वन? Chhattisgarh, if you see the mineral wealth is there, rich state. Jharkhand is mineral rich states. All the Odisha mineral rich states. Karnataka mineral rich states. Andhra Pradesh mineral rich, like that. So we should have also keep your eye open and we should be alert enough that हमारे आसपास तो नहीं है कोई चीज ऐसी, क्योंकि आगे आने वाले समय में अल्टरनेटिव जो मटेरियल्स होंगे इसकी बड़ी डिमांड होगी इंजीनियरिंग में, अल्टरनेटिव और पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग में। क्योंकि अगर रूटीन एप्लीकेशन किसी रॉक एग्रीगेट्स का या मिनरल्स का हो रहा है किसी बिल्डिंग एज ए बिल्डिंग मटेरियल्स या बिल्डिंग डेकोरेटिव स्टोन्स, तो क्या वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है? इफ द मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, सर्टेनली वी हैव टू फाइंड द अल्टरनेटिव मटेरियल। सो फॉर दैट पर्पस दो चीजें हैं, एक तो एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल एक्सप्लोरेशन जो डिफरेंट टूल्स से किए जाते हैं उसको बढ़ाना है, और उसके लिए हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम कर रहे हैं कंट्री में मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, लाइक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देन एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर इज नागपुर, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर जो है कोलकाता, तो और सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून। तो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें तो जाननी ही चाहिए, क्योंकि 4th सेमेस्टर में आप सर्वे जब 1 पढ़ेंगे तो उस समय भी आपको सर्वे ऑफ इंडिया का जिक्र आएगा। Its headquarter is Dehradun, which publishes the topographical sheets on the different scales. Let me come to our business, that is the minerals. Here I was having the question related to the existence of the cleavage in pyrite while it is absent in the cinnabar. अब क्या कारण हो सकता है? मैं आपके बीच में प्रश्न रखा था कि क्यों, आप क्या सोचते हैं कि क्या एक ही ग्रुप का मिनरल्स हैं 3-4, पायराइट, गैलेना, cinnabar, molybdenum, लेकिन cinnabar में
क्लीवेज नहीं है, पाइराइट में सीधा क्लीवेज दिख रहा है, आपको कम से कम एक सेट दिख रहा है। या क्या कारण है? एनीवन? क्या हो सकता है? Sir, due to the different lattice means they may have the same lattice structure, but due to the different atomic sizes. Like sir, in this list of minerals like pyrite, galena, cinnabar, and molybdenite, the smallest is iron, and sir that then we have largest is I think is lead. So तो लार्जेस्ट जब गैलेना है और स्मॉलेस्ट सपोज दैट पाइराइट है और दोनों में क्लीवेज है, तो फिर कैसा डिफरेंस रहा? लार्जेस्ट में भी मिल रहा है और स्मॉलेस्ट में भी मिल रहा है। गैलेना इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय क्लीवेज, परफेक्ट क्लीवेज, एंड पाइराइट बोथ। Is it due to the crystal structures? It is due to the crystal structure, yes. It is due to the crystal structures. मेरा आपको बताने का पॉइंट ये है कि आप बेसिक चीजों को क्लैरिफाई कर लें कंसेप्चुअली। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का बहुत ही बड़ा रोल है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स या लैटिस, जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बाद ही लैटिस की डिस्कशन होता है। लैटिस जब डिस्टर्ब होता है किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का या क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीधा मरकरी सल्फाइड है, लेकिन इसके क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है इट इज नाइदर डबल टेट्राहेड्रा, सिंगल टेट्राहेड्रा है, सिंगल टेट्राहेड्रा में, और ये सीट स्ट्रक्चर्स नहीं बनाता है, इसीलिए जो है इसमें कोई क्लीवेज नहीं है। अब आपको ये जो आप पूछ सकते हैं कि सर आपने सिलिकेट में सिंगल टेट्राहेड्रा, डबल टेट्राहेड्रा, सिंगल चेन, डबल चेन, सीट स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन किया था, यहाँ सल्फाइड में कैसे टेट्राहेड्रा बना? सो इट फॉर्म्स लीनियर टेट्राहेड्रा। मीन्स अगर एक सिलिकॉन के साथ 4 होता है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ मरकरी है, एक सल्फाइड है, एक खाली है यहाँ पे, तो इसके अंदर जो गैप हो रहा है, जो पैक्ड स्ट्रक्चर्स नहीं बन पा रहे हैं, इसी कारण से ये थोड़ी सी इसकी हार्डनेस कम सिनेमा। इसी तरह से क्लीवेज को जो अब्सेंट होना है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का ही पॉइंट है, जिसमें कि प्लेनर, जो हमको प्लेनर स्ट्रक्चर्स मिलना चाहिए, जिसके अलांग क्रिस्टल टूटना चाहिए, वो नहीं टूट रहा नेचुरल। So this is the one aspect. Then I come to the sulfates, and सल्फेट ग्रुप का जो मिनरल है, एक हाइड्रस है, एक अनहाइड्रस है। ये देखिए हाइड्रस कौन सा है? जिप्सम और बेराइट। इसमें मैं पूछता हूं, एक मिनट, लेट मी आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट आलोक वर्मा। आलोक वर्मा, आलोक वर्मा, आकाश यादव, आकाश यादव, अमित कुमार। Yes, sir. Akash Yadav, sir. Akash Yadav, if you have listened my question, Sir, please repeat it again, sir. Why I should repeat? Sir, your calling name, sir, I have just forgotten. Why? आप इसका मतलब क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो। एक ही लड़के के लिए थोड़ी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन जब मैं पुटअप करता हूं तो सभी के लिए हैं, किसी से आंसर पूछा जा सकता है। When I am putting the question before you, this question belongs to all, not anyone particular, but I may ask particular answer from anyone. So thinking should be from all on the question which I am putting to you. Reverse also, if you are putting the question to me, all the students should listen properly. कि अगर आकाश ने सर से क्वेश्चन पूछा है तो हमको सबको सुनना है, क्योंकि रिप्लाई तो सबके लिए हो। आकाश, मैं पूछ रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir.
क्या दिख रहा है? सर सल्फेट्स। वेरी गुड। और नीचे मिनरल्स के सर फोटोग्राफ क्या क्या है? सर बायराइट एंड जिप्सम। Barite and gypsum. Which one is anhydrous? सर एनहाइड्रस फॉर्म इज बायराइट सर। वेरी गुड। सो मेरा पूछना है कि इस एनहाइड्रस और हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट में और उधर बेरियम सल्फेट है, ठीक है? यस सर। इसमें किस फिजिकल प्रॉपर्टीज पे असर पड़ता है इस हाइड्रस ग्रुप होने से? I have already explained you all the physical properties of the mineral. Now you tell which physical property is going to have effect on this hydrous form of the sulfate group. सर आई थिंक लस्टर सर। Luster. What will be the impact? Luster पे क्या होगा? हाइड्रस होने से सर लस्टर अपीयरेंस बढ़ जाएगी सर, मेटेलिक लस्टर। Metallic. यस सर। सल्फेट ग्रुप का तो मेटेलिक लस्टर होता ही नहीं है, सब मेटेलिक हो सकता है, सब मेटेलिक। और क्या असर हो सकता है, और किस फिजिकल प्रॉपर्टीज पे असर हो सकता है? एनीवन? सर हार्डनेस पे होगा। हार्डनेस। या हार्डनेस। वेरी गुड। Ariman was also telling and Aditya Barnwal was also telling, replying hardness. Very good. किसकी हार्डनेस कम या ज्यादा होगी? The gypsum will be have of more hardness. Sorry, gypsum. Yeah, gypsum will be more harder. Ariman, what is your point of view? सर अकॉर्डिंग टू मी सर जो जिप्सम होता है, सर एक मिनट, मेरे को जिप्सम का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। अरे लिखा हुआ है स्क्रीन पे। हाँ सर, जो जिप्सम होता है वो सर 2H2O होता है। हाँ, तो और लिखा सर है। जहाँ तक मेरे को मालूम है, क्या लिखा तो है स्क्रीन पे फार्मूला। स्क्रीन विजिबल हाँ हुआ जी था? सर, एक्चुअली मैं फोन पे कर रहा हूँ तो सर थोड़ा सा मतलब उतना क्लियर नहीं है। एक्चुअली मैं ओके लैपटॉप सर रख दिया हमने। ओके। तो सर जो CaSO4.2H2 होता है सर, मतलब मेरे को थोड़ा सा पहले का ये मालूम है, अभी के नहीं हिसाब से ठीक तो है, नहीं यू आर पता चलता। करेक्ट, यू आर करेक्ट। अब मुझे आप हार्डनेस के बारे में बताइए। जो आदित्य बर्नवाल ने कहा है कि सिंस जिप्सम इज हैविंग द हाइड्रस नेचर, देन इट विल बी मोर हार्डर देन बेराइट। वेदर यू एग्री विथ हिम और नॉट? नहीं सर, आई डोंट थिंक सो दैट जिप्सम विल बी मोर हार्डर। क्या होगा फिर? सर बेराइट ज्यादा हार्डर होगा शायद। एनीवन एल्स? सर मैंने पढ़ा था शायद 10th क्लास में कि जिप्सम जो होता है उसमें सर उसको हम जब गर्म करते हैं शायद 100 डिग्री सेल्सियस पे सर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। उसे ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो सर डेड प्लास्टर हो जाता है, तो उसकी हार्डनेस कम होती जाती है। तो सर शायद इस वजह से जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एसोसिएटेड, यानी मतलब एनहाइड्रस कम हार्ड होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रेटेड फॉर्म। तुम उल्टा बता दिए लास्ट में, पहले सही बता रहे थे, कंक्लूड तो तुमने उल्टा कर दिया। आईपी? हाँ सर, मतलब और हार्डर होता जाता है हाइड्रस ज्यादा होगा और यस सर, इसमें एनहाइड्रस सर कम हार्ड होगा। हाइड्रस के पानी, यस सर, पानी ऐड होता जाता है तो जिप्सम और हार्ड होता जाता है सर। नहीं ऐसा नहीं। जिप्सम पानी होता है तो हार्डर होता जाता है, ये तो अलग चीज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन यहाँ जिप्सम की जो हार्डनेस होगी, यदि हाइड्रस जिप्सम है, उसमें मॉलिक्यूल है, मॉइस्चर है पानी का, तो वो कम होगा बेराइट से। बेराइट इज एनहाइड्रस फॉर्म। ये बताओ, कोई ड्राई मिनरल होगा वो ज्यादा हार्डर होगा या जो सूखा होगा वो सेम कंपोजिशन हो? सूखा वाला। सर ड्राई वाला ज्यादा हार्ड होगा सर। ज्यादा हार्ड होगा। ऐसे तो बेराइट इज मोर हार्डर देन जिप्सम। ऑल्दो यू आर करेक्ट दैट जिप्सम जो है हार्डनिंग प्रॉपर्टी अलग है, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा जब पानी के साथ, जितना पानी आ डाले, तो जैसे सीमेंट के साथ होता है। ड्राई सीमेंट क्या है, उसकी कोई हार्डनिंग प्रॉपर्टी, बट जैसे ही आप ऐड करते हैं पानी, वो बिहेव करने लगता है, उसकी हार्डनिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है, तो वो दैट इज डिफरेंट। बट ऐसे हार्डनेस तो हमको फिजिकल मोड में पता करनी है ना। तो हाइड्रस जो होगा, जैसे इसमें है कि जिप्सम इज हैविंग लोअर हार्डनेस देन बेराइट। An application of barite is in the drilling. It is so harder that barite is used in the drilling of the oil. Drilling जो bits होती है उसमें barite यूज होता है। ONGC या गेल
ये जो कंपनीज हैं जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए काम कर रही हैं, उसमें ड्रिलिंग बिट्स में एबेराइट का यूज होता है। एंड यू नो द एप्लीकेशन ऑफ द जिप्सम? हाँ सर, प्लास्टर वाइट वॉशिंग, प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस सर, जो हम लोगों को मतलब जब बोन ब्रेक हो जाती है तो उस टाइम पे, फ्रैक्चर के टाइम पे यूज होता है। हाँ, और बिल्डिंग मटेरियल्स में भी यूज होता है, वाइट वॉशिंग में भी यूज होता है, या सीमेंट में भी यूज करते हैं हम लोग, वेरी गुड, रॉ मटेरियल। सर ये जो जितने ओर्स के नाम आप ले रहे हैं सर, सारे और याद करने हैं क्या? नहीं, याद नहीं करने हैं, कहाँ कह रहा है याद करने? नहीं सर, पूछ रहा हूँ। नहीं, याद मत करो, लेकिन एग्जाम्पल तो एक दो रहना चाहिए ना आपके पास। अब सल्फेट ग्रुप में तो बहुत सारे मिनरल हैं, बट आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिमेंबर ऑल द मिनरल, just to explain what will be the impact of the chemical composition, what will be the impact of the crystal structures, what will be the impact of the other aspects on the physical properties of the mineral. And I am teaching, or I am explaining the classification of the mineral. In the previous class under theory, I discussed the physical properties of the minerals with the certain examples. Then I am discussing the classification of the mineral, and simultaneously I am also highlighting the application of the minerals, certain minerals, and uses, means usage or application. तो ये दो तीन चीजें जो डिस्कशन हो रही, यही कोर में होनी चाहिए आपके पास, और रिमेंबर करने के लिए कुछ भी नहीं मैं कह रहा हूं कि आप सब चीज याद करिए जो मैं बता रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। आप प्लीज सर, वाटर का कोई फर्क पड़ेगा, मतलब उसकी फॉर्म में लेके, जैसे मैं जिप्सम है ये थोड़ा कॉलम फॉर्म में है, वाटर का फॉर्म पे असर, फॉर्म पे असर नहीं पड़ता। yes, sir. वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्म पे कोई असर नहीं। ओके सर, ओके सर। फॉर्म पे असर मैं बता रहा हूँ किसका पड़ता है। देखिए, फॉर्म पे असर पड़ता है जिस इन्वायरमेंट में मिनरल डिपॉजिट या क्रिस्टलाइज होता है, उसका लोकल इन्वायरमेंट। दूसरा उसका बेसिक कंपोजिशन, इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इससे फॉर्म पे असर पड़ता है और कुछ नहीं। किस इन्वायरमेंट में, किस, जैसे एमार्फस है, कोई ग्रेन्स नहीं होता, वेरी फाइन ग्रेन मिनरल, एमार्फस इन नेचर। एमार्फस नाम सुना है ना, टर्म एमार्फस? यस सर। क्रिस्टलाइन एमार्फस सुना है ना? यस सर। सो क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस में आप डिफरेंस बता दीजिए, क्यों होता है ऐसा और क्या है? पहले बताइए क्या और क्यों। एनीवन? सर, क्रिस्टलाइन में सर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और एमॉर्फस में सर इरेगुलर होता है सर अरेंजमेंट, जो लेटिस हमारे पॉइंट्स होते हैं उनका। और एक चीज और है ना, एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल। सर सिंगल यूनिट क्रिस्टलाइन जो होता है उसका सिंगल यूनिट को क्रिस्टल बोलते हैं ना? या नहीं, क्रिस्टल वेल डेवलप्ड जब ग्रेन्स होते हैं मिनरल के क्रिस्टल फॉर्म में, वेल डेवलप्ड फेसेस आर डेवलप्ड ऑफ द, दैट इज क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन इंसिपिएंट ग्रोथ ऑफ द फेसेस ऑफ द क्रिस्टल। फेसेस देखा है ना, सुना है ना, फेसेस को देखा है ना क्रिस्टल के? यस सर। जैसे ये जो देख रहे हैं जिप्सम में, ये देखिए यहाँ पे ये फेसेस इसको बोलते हैं। जैसे ये है एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, ऐसे होता है ना फेसेस। तो जिस मिनरल में, क्रिस्टल में वेल डेवलप्ड फेस हो जाए उसको क्रिस्टल कहते हैं। इंसिपिएंट डेवलपमेंट ऑफ द फेसेस, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन, एंड देन देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ द फेसेस एट ऑल, दैट इज एमॉर्फस, फाइन ग्रेन। उसमें क्रिस्टल का ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है, फेसेस का ग्रोथ ही नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस। अब तो ये आपने लगभग बता दिया है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कारण क्या है इसके, ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों आया, और ऐसा नेचर में पाया क्यों जाता है कि कुछ मटेरियल मिनरल एमॉर्फस फॉर्म में मिल सकता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल सकता है, क्रिस्टल फॉर्म में मिल सकता है, सभी में मिल, तो क्यों ऐसा होता है? It is because the situation in which the mineral is created. हो सकता है किसी में बहुत ज्यादा,
Yeah. Mineral is not created, crystallized. Because Yes, it is sir. natural Crystallized. process. जैसे एग्जाम्पल, मतलब क्या करना चाहते हैं? ठीक है, ये तो बात सही है कि वो इन्वायरमेंट है जिसके उसमें क्रिस्टलाइज हुआ क्रिस्टल, लेकिन क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स क्या है? सर जैसे जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, जैसे मेटल होता है सर, टेम्परेचर, उसमें प्रेशर। वन बाय वन, ईशान प्रेशर कचौरी, लेट ईशान कचौरी। सर जो मेटल होता है, जैसे हम उसे बहुत जल्दी अगर कूल कर देते हैं तो सर उसमें जो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है सर वो अनइवन होता है, इरेगुलरिटीज बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। और अगर उसे ऐसा स्लोली कंडेंस करते हैं, उसका टेम्परेचर घटाते हैं तो वेरी गुड, हीट, तो सर उसका फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर आता है। वेरी गुड। मीन्स द टाइम related to the cooling of what? Original material is magma. I discussed what is the origin of the magma, partial melting of the earth crust, temperature, pressure and time. These three are the very important and basic parameters which control the growth of the crystal or the process of the crystallization. It has direct impact on the process of the crystallization. Temperature, pressure and you can say the what third I uttered? time. Time. If suppose that a melt from which मिनरल्स को सॉलिडिफाइड होना है या क्रिस्टल को बनना है, वो मेल्ट है, मेल्ट में टोटल लिक्विड होता है, फिर एक उसमें बहुत सारे ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स होंगे, उसमें वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट। अब धीरे धीरे जब क्रिस्टलाइज शुरू, उसका टेम्परेचर डाउन हुआ तो जो पहले जिसका हायर मेल्टिंग पॉइंट था वो अपना क्रिस्टलाइज हो गया, फिर लोअर, फिर लोअर, फिर लोवेस्ट, ऐसे करके। अगर हम उस रैपिड कूलिंग हो जाए तो क्या होगा? उस जो हायर मेल्टिंग पॉइंट वाले को ग्रो वो टाइम उतना नहीं मिलेगा जितना टाइम मिलना चाहिए था। तो अगर कम समय में जिसको जितना समय मिलना चाहिए था उसमें कम समय मिला तो क्या ग्रोथ प्रॉपर होगी क्रिस्टल की? नहीं होगी। टाइम। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर को यदि जिस टेम्परेचर पे क्रिस्टल फॉर्म होता है यदि उससे कम जल्दी से लोअर डाउन हो गया टेम्परेचर, मान लो पास में वाटर आ गया या इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हो गई कि तेजी से कूलिंग हो गई या मैग्मा ओपन आ गया, ओपन मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आ गया जैसे वॉल्केनिज्म में होता है, तो वॉल्केनिक जितने रॉक्स होंगे या मिनरल्स होंगे उसमें वो सारे एमॉर्फस या क्रिस्टलाइन होंगे, क्रिस्टल कभी ग्रोथ ही नहीं होगा उसमें, क्योंकि ओपन सरफेस पे आ गया मैग्मा, प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर लोअर हो गया, तो रैपिड क्रिस्टलाइजेशन से एमॉर्फस नेचर ऑफ ग्रेन्स बनते। इट इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. Anybody is having any doubt? Kajal Sahi. Yes, sir. Have you listened the explanation just now? Yes, sir. ये किस पे था? सर क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस पे था। Very good. What are the factors which are responsible? सर फेसेस, वेल डिफाइंड फेसेस होते हैं क्रिस्टल में। What are the factors जो अभी आपने कहा क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस डिस्कस हो रहा था, what are the factors responsible for the origin of this type of the crystalline crystal structures, crystal mineral grains, crystal, crystalline, amorphous जो आपने कहा कि अभी डिस्कस हो रहा था, क्या फैक्टर्स हैं? सर ये याद नहीं आ, याद थोड़ी करने की बात है, अभी तो हम पढ़ाए जस्ट। मैंने नोट नहीं किया ये। दिमाग में तो नोट करना चाहिए, कॉपी में भले थोड़ा लेट नोट करो। आईपी? यस सर। कैन यू टेल? सर टेम्परेचर, प्रेशर एंड टाइम। वेरी गुड, बस यही आपने काजल सुना? यस सर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टाइम। नहीं, इसका रिलेवेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? मैंने एक्सप्लेन किया है तीनों को। सर केवल रिमेंबर, याद करने की जरूरत नहीं है। इफ यू एक्सप्लेन दिस यू विल नेवर फॉरगेट।
ज्ञान सिंह पटेल, ज्ञान सिंह। Anybody? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Sir, so basically, when the time required for the crystallization is say Continue. material got for the crystallization is less, then it will be amorphous, because and the second thing is temperature. If the temperature is very high, then the cooling of the then the crystallization get disturbed and amorphous. And if the pressure is we apply the pressure. ओके, प्रेशर नहीं बता पा रहे कायदे से। ओके, नो प्रॉब्लम। कौन बताएगा प्रेशर का एग्जांपल? कौन बताएगा, एक्सप्लेन करेगा प्रेशर को? रोल ऑफ प्रेशर इन द क्रिस्टलाइजेशन, एनीवन? Anyone? No one. You suppose that I cited the example of the volcanic process. The magma erupted and reaching to the surface, on the surface of the earth, means pressure, and earlier the magma was inside the earth. So pressure was very high on that magma and crystallization was going on beneath the earth surface. Pressure was very high. So we expect that the better crystallization occurs below the surface of the earth. If the magma erupts and reaches to the surface, on the surface of the earth, तो क्या होगा? कूलिंग प्रेशर रिलीज हो गया, तो प्रेशर रिलीज होने से, कम होने से टेम्परेचर भी जल्दी से कूलिंग हुआ, टेम्परेचर भी लोअर डाउन हुआ। कभी भी आप प्रेशर को जैसे रिलीज करते हैं तो टेम्परेचर भी, तो किसी चीज पे आप प्रेशर लगाए हुए हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर घटेगा? नहीं सर, प्रेशर इंक्रीज करने पे जो टेम्परेचर बढ़ेगा सर, वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो प्रेशर, एक अर्थ सरफेस है, उसके नीचे मैग्मा है, तो प्रेशर वहां ज्यादा होगा कि अर्थ के ऊपर आ गया तो वहां प्रेशर होगा? सर मैग्मा inside the surface, तो अर्थ के नीचे। So inside the earth the pressure is higher, then the growth of the crystal is very good. While if in the process of volcanism, if it erupts and coming on the surface of the earth, then pressure is drastically reduced and temperature is also reduced and the cooling starts very fast and we get the amorphous nature of the crystal. So now किसी भी जैसे लैब में भी आप किसी को प्रेशर पे मतलब कवर कर दें वाटर को या किसी भी मेल्ट को, और कवर करके और एक को खुला छोड़ दें, तो जिसमें आप कवर किए हुए हैं, प्रेशर जिस पे दिए हुए हैं, उसमें क्रिस्टल का ग्रोथ में टाइम लगेगा, और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो और बेटर क्रिस्टल ग्रोथ होगा। देन यस, अभिषेक त्रिपाठी। सर प्रेशर वाले का एक एग्जांपल हो सकता है, ऐसे ग्रेफाइट जो रहता है प्रेशर से दब के क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ डायमंड में ट्रांसफर हो जाता है नेचुरल प्रोसेस के साथ, तो ये भी हो सकता है। वेरी गुड। So it is also example which Abhishek has given, that the same chemical composition but the crystal structures becomes different, and with the high pressure the graphite changes into the diamond. एंड इसको क्या कहते हैं, जैसे केमिकल कंपोजिशन सेम हो, मिनरल अलग हो, इसको क्या कहते हैं? सर एलोट्रोपी। सर एलोट्रॉप। ओके, और पॉलीमार्फ्स किसको कहते हैं? क्या सर? वो तो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स हो गए, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स। पॉलीमार्फ्स, एमार्फस नहीं, पॉलीमार्फ्स। सर ये नहीं सुना अभी तक। पॉलीमार्फ मींस एक ही मिनरल्स के डिफरेंट फॉर्म हो, उसको पॉलीमार्फ कहा जाता है। हम इसको आपके लैब में भी डिस्कस करेंगे, जो थ्योरी में भी बोला है पॉलीमार्फ्स, और दिखाने की भी कोशिश करेंगे। जैसे आई साइड द एग्जांपल ऑफ द क्वार्ट्ज. Quartz occurs in the massive form also,
and the hexagonal form you have seen. So if the quartz occurs in these 2-3 form, then we can say quartz is having the polymorph. Quartz is the polymorph क्योंकि एक ही mineral कई form में मिल रहा है. So that is having the polymorph. Okay. So is there any doubt? सर अल्फा ग्रेफाइट और बीटा ग्रेफाइट ये भी अगर पॉलीमॉर्फ्स ही होंगे? नहीं, अल्फा ग्रेफाइट बीटा ग्रेफाइट के फॉर्म बेटा चाहिए ना, फॉर्म, मार्फोलॉजिकल फॉर्म, मार्फोलॉजी, पॉलीमॉर्फ, पॉली मींस मेनी, मॉर्फ मींस शेप, फॉर्म. अल्फा एंड बीटा ये उसके फिजिकल फॉर्म नहीं है बेटा, ये आपका क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के आधार पे अल्फा बीटा ग्रेफाइट कह रहे हो. क्वार्ट्ज में भी होता है अल्फा बीटा क्वार्ट्ज, तो वो पॉलीमॉर्फ नहीं है. क्वार्ट्ज में जो हेक्सागोनल फॉर्म है, हेक्सागोनल क्वार्ट्ज है, आपको दिखेगा कि हेक्सागन सेंस में, एक में मैसिव दिखेगा, लेकिन है तो क्वार्ट्ज और डिफरेंट फॉर्म में मिल रहा है. सो दैट इज पॉलीमॉर्फ. समझ में आ रहा है? यस सर. Okay, so with these words I stop here and we will be meeting next time. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. बहुत सारे लोग छठ को में होंगे. हैप्पी छठ टू ऑल, है ना, छठ की बधाई आप सभी को, क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे लोगों के यहाँ छठ भी मनाया जाता होगा. तो आप सभी को छठ की हार्दिक बधाई. Enjoy the lectures and your study. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.